Hello everyone, welcome to today's class. In today's session, we'll be discussing the principles of management given by fuel. Fuel has given 14 principles of management. They are division of work, authority and responsibility, discipline, unity of command, unity of direction. Sixth one, subordination of individual interest to general interest. Seventh, remuneration. Eighth, centralization and decentralization. Ninth principle, scalar chain. 10th principle, order. 11th principle, equity. 12th principle, initiative. 13th principle, stability of tenure of personnel or employee. And the last principle, esprit de corps. Now, before starting the meaning of these principles, let's have a brief introduction about Henry Fuel. बेटा, there are various school of thoughts. अगर हम देखें तो हमारे पास देर आर थ्री स्कूल ऑफ थॉट्स. एक है क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट, एक है न्यू क्लासिकल और एक है हमारा मॉडर्न स्कूल ऑफ थॉट. तो हेनरी फ्यूल के जो प्रिंसिपल्स हैं दिए हुए, दे आर क्लासिफाइड अंडर क्लासिकल स्कूल ऑफ मैनेजमेंट थॉट. सबसे पहले हेनरी फ्यूल और टेलर के प्रिंसिपल्स ही they had given the principles during the early years. Henry Fuel administrative theory of management is very famous, and we are using till date many principles given by Henry Fuel. Henry Fuel explained what amounts to a manager's work and what principles should be followed in doing this work. अब बेटा, टेलर के जब हमने प्रिंसिपल्स पढ़े थे तो हमने पढ़ा था कि टेलर ने जितने प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट दिए थे वो वर्कर की एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने के लिए दिए थे. लेकिन फ्यूल के जितने प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट दिए हैं वो फ्यूल ने दिए थे कि अगर वो प्रिंसिपल्स टॉप मैनेजमेंट फॉलो करे और टॉप मैनेजमेंट की एफिशिएंसी इंक्रीज हो, तो फ्यूल का ये मानना था कि टॉप मैनेजमेंट की एफिशिएंसी अगर इंक्रीज होगी तो दैट एफिशिएंसी इज गोइंग टू परकुलेट डाउन द लेवल. Henry Fayol was a French management theorist whose theories concerning scientific organization of labor were widely influential in the beginning of 20th century. French management theories थे और इनकी theories, they were widely accepted and they were very famous. The 19-year-old engineer started at the mining company. He started his career at a mining company and ultimately acting at, and this is the name of this company. Just a sec. This is the name of a company. It's a French name. So, and then ultimately he was acting as its managing director from 1888 to 1918. Henry Fayol was known as father of general administration. जैसे Taylor was known as father of scientific management, Henry Fayol को हम father of general administration के नाम से जानते हैं. He was the first to identify 4 functions of management, that is planning, organizing, directing and controlling. According to Fayol, all activities of an industrial undertaking could be divided into technical, commercial, financial, security,
अकाउंटिंग एंड मैनेजरियल। ये जो डिपार्टमेंटलाइजेशन का कंसेप्ट है, ये फ्यूल ने दिया था कि कंपनीज में डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट सेटअप हों, ताकि काम जो है एक तरीके का काम एक डिपार्टमेंट में हो। तो जो फ्यूल ने कहा कि जो एक्टिविटीज हैं किसी भी इंडस्ट्री की, उनको हम कंपार्टमेंटलाइज कर सकते हैं, डिपार्टमेंटलाइज कर सकते हैं। और ही सेड that these activities can be divided into technical, commercial, financial, security, accounting and managerial। बेटे आप इस पे 1 मार्क क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो बोर्ड में। Based largely on his experience, he developed his concepts of administration। अभी हमने पिछली स्लाइड में भी कहा था कि हेनरी फ्यूल ने जितने मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स दिए थे, हेनरी फ्यूल का मानना था that these principles are to be applied at the top level। Now, if the efficiency of top management is increased, he believed that this efficiency is going to percolate lower down the level। ये जो एफिशिएंसी हायर लेवल पे इंक्रीज होगी तो वो धीरे धीरे ऑब्वियसली, अगर हमारा टॉप मैनेजमेंट एफिशिएंटली काम करेगा तो बाकी सारे लेवल्स भी एफिशिएंटली काम ही करेंगे। इसीलिए एंड ही हैज गिवन ऑल द प्रिंसिपल्स बेस्ड अपॉन हिज एक्सपीरियंस। फाइन। एंड तभी इनको कहा जाता है फादर ऑफ जनरल एडमिनिस्ट्रेशन। 14 principles of management propounded by him was discussed in detail in his book published in 1917, Administration Industriale Journale। For his contribution, he is also known as father of general management। The first principle of management given by Fuel was division of work। According to this principle, work is divided into small tasks or job, and a trained specialist who is competent is required to perform each job। Thus, division of work leads to specialization। अब बेटा फ्यूल का ये मानना था कि एक काम है, ठीक है, अब उस काम में डेफिनेटली वो काम में देयर आर गोइंग टू बी डिफरेंट स्मॉल स्मॉल एक्टिविटीज और स्मॉल स्मॉल टास्क और स्मॉल स्मॉल जॉब्स दैट नीड टू बी परफॉर्म्ड। एक काम में लेट्स से टास्क 1 होना है, टास्क 2 होना है, टास्क 3 होना है, और जब ये तीनों टास्क कंप्लीट हो जाएंगे तो ये वर्क कंप्लीट हो जाएगा। तो फ्योल ने कहा कि ठीक है, उस काम को आप डिफरेंट टास्क में, छोटे छोटे टास्क में डिवाइड कर दीजिए, और हर एक टास्क करने के लिए उस पर्सन को अलॉट कीजिए वो टास्क जो कि उस काम को करने के लिए स्पेशलिस्ट हो। That person should be specialist in doing the task। In business, work can be performed more efficiently if it is divided into specialized tasks, each performed by a specialist or trained employee। This results in efficient and effective output। तो फ्योल ने ये कहा कि अगर हर टास्क एक ट्रेंड और स्पेशलिस्ट एम्प्लॉय परफॉर्म करेगा तो डेफिनेटली एक तो काम को करने में एरर नहीं होगा। एक स्पेशलिस्ट परफॉर्म कर रहा है तो वो उस काम को कम टाइम में कंप्लीट करेगा, तो डेफिनेटली इट विल रिजल्ट इन efficient and effective completion of the whole work। आपका काम पूरा इफेक्टिवली टाइम पर और efficiently कम कॉस्ट पे कंप्लीट हो जाएगा, कम उसके अंदर एरर होंगे, there will be less chances of defects। Thus, in a company, we have separate departments for finance, marketing, production, and human resource development, etc। All of them have specialized persons। Collectively, they achieve production and sales target of the company। अब आप देखो कंपनी में भी इसी प्रिंसिपल को फॉलो करके कंपनीज में डिफरेंट डिपार्टमेंट्स बनाए जाते हैं। फाइनेंस डिपार्टमेंट के जितने भी पर्सनल होते हैं वो सिर्फ फाइनेंस को ही देखते हैं। मार्केटिंग डिपार्टमेंट के पर्सनल मार्केटिंग एरियाज को देखते हैं बिकॉज दे आर स्पेशलिस्ट in doing that task। And collectively, all the persons of various departments achieve the organizational goals।
Fuel applies this principle of division of work to all kinds of work, technical as well as managerial. Now let's come to the advantages or positive effect of this principle of division of work. First advantage, it leads to specialization of an employee in the respective task. Definitely, जब हाँ एक employee एक particular area में, एक particular domain में एक ही काम बार बार कर रहा है, तो उसको उस काम की एक्सपर्टीज हो जाती है, वो उसमें स्पेशलिस्ट हो जाता है. Division of work increases speed and improves efficiency and accuracy in performance. और जब वो efficient हो जाता है, उस काम में specialist हो जाता है, तो वो काम को कम टाइम में कर पाता है, उसकी स्पीड भी इंक्रीज हो जाती है, एक्यूरेटली कर पाता है. There are less chances of committing error. And thirdly, it results in increase in output ड्यू टू मोर एफिशिएंट एम्प्लॉयज. और डेफिनेटली आपका आउटपुट भी इंक्रीज होता है. तो अगर हम कीवर्ड्स इसमें देखें कि कौन से कीवर्ड्स हैं जो हमें याद रखने हैं फॉर राइटिंग द एडवांटेजेस और पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क, फर्स्ट इज लीड्स टू स्पेशलाइजेशन. फर्स्ट keyword is specialization. Second keyword increases speed, improves efficiency and accuracy, and third is increase in output. Fourth, division of work makes tasks simpler. So again इसका keyword क्या हो जाएगा? Makes tasks simpler. Avoids wastage of time and effort. So the last advantage is that the work is going to be completed in less time and less effort will be involved. However, there are certain adverse effects also of this principle. First is you can very well easily guess. अगर आप एक काम को बार बार करते जा रहे हो, fine, so it will result into monotony. When same work is given again and again, then it leads to monotony and makes the job less interesting. The job will become less satisfying. आपको काम करके satisfaction नहीं मिलेगी क्योंकि आप एक ही तरीके का काम हमेशा करते जा रहे हैं. Job is not at all challenging. Employee are unable to attain specialization in any other work. आप एक ही काम को कर रहे हैं, आपको अलग अलग डिपार्टमेंट की, दूसरे डोमेन की बिल्कुल नॉलेज नहीं है, तो एम्प्लॉयज आर अनेबल टू अटेन स्पेशलाइजेशन इन एनी अदर वर्क. And lastly, there will be less speed and efficiency in performance. अगर the employees बोर हो जाते हैं, monotony हो जाती है और जॉब उनके लिए वो less satisfying रह जाता है. I hope that this principle division of work, its advantages and the limitations or adverse effects are clear to all of you. Now the next principle given by Fuel is authority and responsibility. According to Fuel, authority is the right to give orders and to obtain obedience, and responsibility is the corollary of authority. देखिए बेटा, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या है यहाँ पर? एक्चुअली प्रिंसिपल तो ये है कि फ्यूल का ये मानना था कि अगर हम किसी को किसी काम को करने की अथॉरिटी देते हैं, है ना, तो साथ ही साथ उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उतनी ही देनी चाहिए टू कंप्लीट दैट टास्क. अथॉरिटी का मतलब होता है राइट टू गिव ऑर्डर्स, कोई इंस्ट्रक्शन देना, है ना, आपके पास पावर होती है. अथॉरिटी एक्चुअली इज बेसिकली मीन्स गिविंग यू अ पावर टू डू समथिंग, फाइन. एंड एट द सेम टाइम अगर आपके पास पावर है, अथॉरिटी है किसी काम को करने की, तो यू आर इक्वली रिस्पॉन्सिबल. आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि आप उस काम को जो आपको दिया गया है, जिसको करने की पावर आपको दी गई है, यू शुड कंप्लीट दैट टास्क विद होल सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी. रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब टू ऑब्टेन ओबीडियंस. नाउ देयर आर टू टाइप ऑफ अथॉरिटी. एक तो होती है ऑफिशियल अथॉरिटी, फाइन. ऑफिशियल अथॉरिटी जो होती है वो आपके आपकी जो डेजिग्नेशन है उससे आपके पास आती है,
ठीक है, एंड इट्स द अथॉरिटी टू कमांड। और दूसरी अथॉरिटी होती है पर्सनल अथॉरिटी। पर्सनल अथॉरिटी आपके अपने ट्रेड से आती है, यानी कि आपके अंदर लीडरशिप ट्रेड्स हैं, आपके अंदर पर्सनल अथॉरिटी है, विच इज द अथॉरिटी ऑफ द इंडिविजुअल मैनेजर। तो दो तरीके की अथॉरिटी होती है, एक ऑफिशियल अथॉरिटी जो कि आपको आपके डेजिग्नेशन से मिलती है, जो आप किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में किसी डेजिग्नेशन पे काम करते हो उस हिसाब से आपको अथॉरिटी मिलती है। और दूसरी अथॉरिटी आपकी पर्सनल अथॉरिटी होती है, जो कि आपके अपने इंडिविजुअल ट्रेड्स से आपको मिलती है, यानी कि आपके अंदर लीडरशिप ट्रेड्स हैं तो आपके पास इसका मतलब पर्सनल अथॉरिटी है टू लीड अदर्स। अथॉरिटी कैन बी बोथ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। फॉर्मल अगेन आपको ऑर्गेनाइजेशन से मिलती है, इनफॉर्मल अपने आप ही अथॉरिटी आती है। अगेन यू आर हैविंग सम पर्सनल ट्रेट्स, आपके पास लीडरशिप ट्रेट्स हैं, तो यू आर गोइंग टू हैव इनफॉर्मल अथॉरिटी एंड यू आर गोइंग टू डोमिनेट अ ग्रुप। So manager require authority commensurate with their responsibility. फाइन, अब ये प्रिंसिपली यही कहता है कि अथॉरिटी के साथ जितनी आपके पास अथॉरिटी हो उतनी आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। देयर शुड बी अ बैलेंस बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, और जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको फुलफिल करने के लिए आपके पास एडिक्वेट अथॉरिटी होनी चाहिए। An organization should build safeguards against abuse of managerial power. At the same time, a manager should have necessary authority to carry out his responsibility. अब देखो बेटा, अगर आपके पास ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अथॉरिटी है नहीं डिसीजन लेने की, तो क्या होगा, आप काम को पूरा नहीं कर पाओगे, बिकॉज आपके पास पावर नहीं थी कोई और डिसीजन लेने की। यू हैड रिस्पॉन्सिबिलिटी बट नॉट एडिक्वेट अथॉरिटी टू कंप्लीट द टास्क। लेकिन आपके पास अगर अथॉरिटी ज्यादा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी कम है, तो क्या हो सकता है कि अथॉरिटी का मिसयूज हो सकता है। तो फ्यूल का ये मानना था कि अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी शुड गो हैंड इन हैंड, देयर शुड बी अ बैलेंस बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स सी, a salesperson has to negotiate a deal. salesperson को एक डील नेगोशिएट करनी थी एक बायर के साथ। she finds that if she can offer credit period of 60 days, she is likely to clinch the deal, which is supposed to fetch the company net margin of, let's say, 50 crores. मतलब अगर सेल्स मैनेजर के पास इतनी अथॉरिटी हो कि वो क्रेडिट पीरियड कस्टमर को 60 डेज का ऑफर कर दे, तो वो कंपनी को 50 करोड़ की डील करा सकती है। नाउ द कंपनी गिव्स पावर टू द मैनेजर टू ऑफर अ क्रेडिट पीरियड ऑफ ओनली 40 डेज। अब उसके पास पावर कितनी थी, अपनी पोजीशन के हिसाब से, अपने डेजिग्नेशन के हिसाब से टॉप मैनेजमेंट ने उसको पावर दे रखी थी कि आप 60 डेज का क्रेडिट पीरियड ही ऑफर कर सकते हो, इससे ज्यादा ऑफर नहीं कर सकते। This shows that there is an imbalance in authority and responsibility. In this case, the manager should be granted authority of offering credit period of 60 days in the interest of the company. क्योंकि अगर 60 days means 20 more days का और क्रेडिट पीरियड अगर वो ऑफर कर देती कस्टमर को, तो ये डील क्लिक हो जाती। Similarly, in this example, the manager should not be given a power to offer a credit period of say 100 days. 100 days means more than 3 months. More than 3 months तो कभी भी कहीं पे भी नहीं चलता। more than 3 months हमारे बिजनेस में कहीं प्रैक्टिसेस में क्रेडिट पीरियड नहीं चलता है, because it is not required. Fine. So there should be a parity. Parity means balance between authority and responsibility. A manager should have the right to punish the subordinate for willfully not obeying a legitimate order, but only after sufficient opportunity has been given to the subordinate for presenting his or her case. इस पॉइंट में बेटा ये डिस्कस कर रहे हैं कि मैनेजर के पास राइट होता है टू पनिश द सबॉर्डिनेट, अगर सबॉर्डिनेट ने उनका कोई भी ऑर्डर
लेजिटिमेट ऑर्डर को मानने से मना कर दिया। लेकिन पनिश करने से पहले सबॉर्डिनेट को सफिशिएंट टाइम देना चाहिए ताकि वो अपना जो भी वो कहना चाहता है कि व्हाई ही वाज अनेबल टू परफॉर्म दैट टास्क व्हिच वाज असाइंड टू हिम, द subordinate should be properly heard before giving punishment. Now let's come to the advantages or positive effect of this principle. Advantages is, if there is a balance between authority and responsibility, then there will be no misuse of authority. Authority आपकी कभी misuse नहीं होगी, and it helps in performing duties on time without any delay, क्योंकि authority के साथ साथ the manager is equally responsible for the completion of work on time. The adverse effects of violation would be, if authority is less than the responsibility, then subordinate will not be able to perform his duties and will result in delay of work. मतलब आपके पास अथॉरिटी तो थी लेकिन वो इतनी नहीं थी, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा थी, अथॉरिटी कम थी, तो सबॉर्डिनेट उस काम को टाइमली कंप्लीट नहीं कर पाएगा। ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, राइट टू टेक डिसीजन पावर है नहीं कि वो टाइमली डिसीजन ले ले और काम को ऑन टाइम कंप्लीट कर दे, बिकॉज ही हैज टू सीक परमिशन फ्रॉम हिज सुपीरियर। फाइन, क्योंकि उसके पास पूरी अथॉरिटी नहीं है तो उसको बार बार सुपीरियर से पूछना पड़ेगा। फाइन, तो इन दैट केस द वर्क विल बी डिलेड। इफ अथॉरिटी इज मोर देन रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी ज्यादा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटेबिलिटी है नहीं, देन सबॉर्डिनेट में मिसयूज हिज अथॉरिटी, अथॉरिटी का मिसयूज किया जा सकता है। It would also result in employee becoming overburdened with work and excess responsibility. मतलब अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है अथॉरिटी से तो एम्प्लॉय को लगता है यार डिसीजन तो कोई ले नहीं सकते, सब कुछ तो हमने सुपीरियर से जाके पूछना है, तो मेरे को रिस्पॉन्सिबिलिटी भी क्यों दी गई है, तो ही मे फील दैट ही इज ओवरबर्डन्ड विद द वर्क. Now the next principle given by Fuel is discipline. Discipline is the obedience to organizational rules and employment agreement. जो भी आप साइन करते हो employment agreement, जब आप को अपॉइंटमेंट लेटर मिलता है, सो आप जो भी अग्री करते हो एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट, you are adhering to it. That is what discipline is. So discipline is obedience to organizational rules and employment agreement which is necessary for the working of the organization. मतलब जो organizational rules हैं और जो आपने agree किया था at the time of employment, है ना, जब आप appointment letter को sign कर रहे थे, जो भी आपने rules और जो भी terms and conditions agree करी थी, अगर आप उनको फॉलो कर रहे हो while you are doing the work in an organization, that means you are following the discipline. According to Fuel, discipline requires good superiors at all levels, clear and fair agreement, and judicious application of penalties. Fuel का ये मानना था कि डिसिप्लिन कैसे आप इंश्योर कर सकते हो कि एक तो देयर शुड बी गुड सुपीरियर्स एट ऑल लेवल्स, फाइन, फेयर होने चाहिए, पार्शियल नहीं होने चाहिए, क्लियर एंड फेयर एग्रीमेंट्स, फाइन, एंड जुडिशियस एप्लीकेशन ऑफ पेनल्टीज। मतलब ऐसा नहीं कि एक एरर टू पर्सन्स ने किया है, सेम सेम एरर इज बीइंग कमिटेड, आप एक को कोई और पेनल्टी दे रहे हो और दूसरे पर्सन को कोई और पेनल्टी दे रहे हो। फाइन, सो जुडिशियस एप्लीकेशन ऑफ पेनल्टी का मतलब कि अगर आप कोई पनिशमेंट दे रहे हो, सो दैट शुड बी गिवन equally judiciously satisfied, it is applicable for that particular error.
Suppose management and labor union have entered into an agreement whereby workers have agreed to put in extra hours without any additional payment to receive to revive the company out of loss. अब देखिए कंपनी आपकी लॉस में चल रही थी, फाइन, और मैनेजमेंट और लेबर यूनियंस ने, फाइन, क्या एग्रीमेंट किया कि जब तक कंपनी लॉस से नहीं निकलेगी, ठीक है, वर्कर एक्स्ट्रा काम करेंगे लेकिन एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं लेंगे जब तक कंपनी लॉस से रिवाइव नहीं हो जाती। ये मैनेजमेंट और वर्कर के बीच में एग्रीमेंट हो गया। In return, management has promised to increase wages of the worker when this mission is accomplished. मैनेजमेंट ने भी प्रॉमिस कर लिया कि ठीक है, जब कंपनी लॉस से रिवाइव कर जाएगी, कंपनी में प्रॉफिट्स आ जाएंगे, तो आपकी पे इंक्रीज हो जाएगी। तो अब यहाँ पे डिसिप्लिन क्या है? हेयर डिसिप्लिन व्हेन अप्लाइड वुड मीन दैट योर workers and management both honor their commitments without any prejudice towards one another. Fine, without any prejudice towards one another. मतलब वर्कर ने जो कहा वो बिना अभी पे इंक्रीज करे काम करे, जब कंपनी रिवाइव हो जाए लॉस से तो कंपनी आपको आप वर्कर्स को की पे इंक्रीज कर दे. सो बोथ शुड ऑनर देयर कमिटमेंट्स. So advantages or positive effect of this principle of discipline is that it results in smooth and systematic functioning of the business and it improves the efficiency. Adverse effects of violation are there may be disobedience of rules and regulations by the employee in the organization. हो सकता है कि employee जो है वो disobey करे rules and regulations के. Leads to wastage of resources as work is not performed with full satisfaction. And lastly, the relations between management and employee may not be so cordial. फाइन, अगर डिसिप्लिन फॉलो नहीं होगा तो मैनेजमेंट और एम्प्लॉय के रिलेशनशिप्स हार्मोनियस नहीं होंगे, कॉर्डियल नहीं होंगे, और अगर ऐसा होगा तो डेफिनेटली आप काम फुल सेटिस्फेक्शन के साथ नहीं कर पाएंगे, वेस्टेज होगी काम में, एंड देयर मे बी डिसओबीडियंस ऑफ रूल. क्योंकि अगर वर्कर्स सेटिस्फाइड नहीं है, फाइन, मैनेजमेंट से सेटिस्फाई नहीं है, तो ऑब्वियसली दे मे स्टार्ट डिसओबेइंग द रूल एंड रेगुलेशंस. सो it is better to observe discipline both on the part of management. मैनेजमेंट ने अगर कुछ कमिट किया है तो वो भी फुलफिल करे, एंड ऑन द पार्ट ऑफ वर्कर्स, अगर वर्कर्स ने कुछ कमिट किया है, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए हैं वो उनको फॉलो करें, जो भी टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है उसके अकॉर्डिंगली ही काम एग्जीक्यूट हो. I hope that all the principles of management given by Fuel discussed today is being clear to all of you. That's all for today from my side. If you have any query, you can drop the query on the WhatsApp number given at the end of the slide. Thank you very much.